Hello, ma'am. Hello. Hi. Good afternoon, ma'am. How are you? Good afternoon. I'm good. आप कैसे हैं? I'm all well. Thank you. Okay, let's wait for a 1 minute. मृदुल सर join करते हैं, then we'll start. All right. Very good afternoon, sir. Very good afternoon, ma'am. How are you? I'm Hello. good. आप Namaste. कैसे हैं? Very good. So, So nice to see you. so can we start? Sure, we can. Okay. So, very good afternoon, also pet parent. We are back with a new live session. So, in today's live session, Mr. Mridul Goyal, our director of Goyal Vet Pharma Private Limited, and our in-house veterinarian, Dr. Sakshi Sharma. So, they both are live with us to discuss on a topic which is epilepsy and seizures in pet. So, as you know that epilepsy and seizure is common in the pet and they are spending a lot and pet parent facing a problem in epilepsy and seizure. So we discuss on a issue on epilepsy or seizure in pet. I would like to hear your thoughts on this. So please. So thank you, Dr. Sakshi, and welcome, Dr. Sakshi. Thank you, sir. We are here to discuss about seizures in Yeah. dogs and pets. So basically, only 0.75% pets can cause seizures. But nowadays, the situation is worsening, and the number of patients are increasing in the seizures cases and epilepsy cases. So now, pet parent is need of the time is saying that you have to do something much more important, something hard to do. The medicine should be natural because pet is really very soft and our हमारे बच्चे हैं, we can say that these are our children's, so we have to be very careful about seizures. Right. Yes. What do you think about it, Dr. Sakshima? What's Yeah. your point on this? Yes. So, ma'am, I like to tell all the pet parents that seizures and epilepsy are a very serious kind of medical condition among pets. It's Yeah. not very common, but अगर pet को है, it causes a lot of trouble and pain, trouble to the pet. Not the pain, but the trouble to the pet. और उसको जब हम trouble में देखते हैं, when you find our pet in trouble and fighting for his life against seizures or this epileptic episodes, तो pet parents को भी काफी बुरा लगता है and they get very disheartened to see their pets suffering like that. So कुछ ये जो condition है, it is serious, but it is not very common. So, and one important thing about seizures or epilepsy is कि इसमें जो पेट का नर्वस सिस्टम है that gets involved, so it becomes very important to manage the disease, because अगर nervous system involved है तो it is very difficult to permanently cure the disease, but through proper medication, through proper management, it can be treated, it can be maintained to a very great extent, which brings a lot of comfort to the pet also and the pet parents also. Okay, great. Chisa. So there is a one common question which is asked by a pet parent that what are the signs and symptoms of epilepsy in pets? Yes. Yeah. So the different signs and symptoms that a pet parent can find and diagnose कि उनके pet को epilepsy है या फिर seizure हो रहा है कि first time if they find something unusual happening to their pet, so they can judge, they can find out और make a clean diagnosis कि शायद उसको seizures हो रहे हैं, epilepsy है. There are the few things which I can tell जिनसे parents differentiate कर सकते हैं. Like first and foremost होगा कि pet में suffer a fit क्या होगा कि uncontrollable jerking movements हो जाएंगी, body becomes stiff, either stiff
या फिर उसके बाद स्टिफनेस के बाद जो है लिम्स एंड दे बिकम वेरी पैडलिंग, उनमें पैडलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, चॉम्पिंग ऑफ टीथ स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से जो है वो अपने टीथ को ग्राइंड करना शुरू कर देगा या टाइट हो जाएगा उसका मस्कुलेचर ऑफ द फेस, सीजर्स इन डिफरेंट ट्विचिंग हो सकती है डिफरेंट मसल्स में। पेट जो है ये हो गया हमारे फिट्स के कंडीशंस। और दूसरी जो हमारे सिम्टम्स रह सकते हैं दैट कुड बी लाइक कि जो है पेट अनयूजुअल बिहेवियर दिखाना शुरू हो जाएगा, वो उनको एक पार्शियल ब्लाइंडनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी, दे स्टार्ट बार्किंग, आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं उस टाइम पे। यू फील उनके बीच में अनकंट्रोलेबल जो है वो एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मसल्स है, दे स्टार्ट Right. लुकिंग टुवर्ड्स देयर टेल और बाइटिंग देयर टेल्स। दीज आर द फ्यू सिम्टम्स थ्रू व्हिच पेट पेरेंट्स कैन डायग्नोज कि उनका पेट जो है दे माइट बी हैविंग अ सीजर और एन एपिलेप्टिक एपिसोड। Right. Okay. So next question is, how can I help my pet during a seizure? यस, सो सीजर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन रहती है पेट्स में, बिकॉज उसमें एकदम से टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, बिकॉज अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स रहती हैं पेट की, और Right, थोड़ा right. सीरियस रहता है, पेट एंशियस हो जाता है, सराउंडिंग्स उसके लिए बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, बिल्कुल अनअवेयर हो जाता है अपनी सराउंडिंग्स का। तो इस दौरान जो है हमें क्या करना है, बीइंग पेट पेरेंट, हमें अपने पेट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। उसका जो भी सीजर हो रहा है, यू डोंट कम क्लोज टू योर पेट और ट्राई टू कम्फर्ट इट। आप दूर रह के अपनी वोकलाइजेशन से आप अपने पेट को बुला सकते हैं, उसको थोड़ा सूद कर सकते हैं, बट डोंट टच योर पेट। आप उसके अननेसेसरीली उसका फेस या फिर कहीं पे भी अगर उसको ट्विचिंग हो रही है, डोंट ट्राई टू टच इट और होल्ड इट और कंफर्ट इट, लेट योर पेट टेक इट्स टाइम। आपको दूर रह के उसको कंफर्ट करना है। आसपास कुछ भी हजार्डेड चीजें हैं, अगर टेबल है, टेबल टॉप है या फिर कुछ सोफा है, आपको लगता है कि पेट के मूवमेंट्स उसको लग सकते हैं, यू ट्राई टू जस्ट Mm. कीप इट अवे फ्रॉम द पेट्स, वहां पे दूर करना है। अपने अगर आपके घर में चिल्ड्रन है उनको दूर कर देना है पेट से। ऑल्सो आप उस टाइम पे थोड़ा इन्वायरमेंट जो है उसके लिए काम एंड पीसफुल कर सकते हैं। अगर टीवी चल रहा है, आपका मोबाइल फोन्स है पास में, शोर है, बिकॉज उस टाइम पे पेट बहुत सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ Right. डिस्टर्बेंस। आपको वो सब दूर कर देने हैं, वो कंट्रोल करना है। और थोड़ा आप फैन एसी वगैरह ऑन कर दे, बिकॉज टेम्परेचर हाई हो जाता है उसमें, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, हीट डिसिपेशन इज डिफिकल्ट टू काम डाउन योर पेट। आप थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट उसका कूल एंड काम कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट टच योर पेट मीनवाइल। ऑल्सो यू रिकॉर्ड द टाइमिंग ऑफ द फिट। अगर तो वो 1 to 2 मिनट्स के बीच बीच में कवर हो रहा है, देन इट इज नॉट वेरी सीरियस, दैट कैन बी कंट्रोल्ड। बट अगर वो 5 मिनट से ऊपर है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर मतलब डिफिकल्ट Right. स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट पे है। दीज आर द फ्यू थिंग्स टू बी नोटेड डाउन और टू बी डन while your pet is having a seizure or an epileptic episode. So this can help. Great, great. So can homeopathy help in treating epilepsy and seizure disorder? Yes, ma'am. Sure. Homeopathy is a very effective medicine, a medical concept, and nowadays we are getting a lot of patients for this epilepsy, seizures. Even जहाँ तक हम देख पा रहे जी. हैं, stress is the basic cause of every type of neurological problem. A lot of stress is there, Correct, correct. and stress conditions become the anxiety, stress, एंड स्लोली स्लोली ये बढ़ता बढ़ता जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बदल जाता है। समटाइम्स ये एपिलेप्सी और सीजर्स तक जाता है। सो रूट कॉज जो है प्रॉब्लम का वो आता है स्ट्रेस। सो प्राइमरी सिम्टम्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना रहता है। डॉक्टर साक्षी ज्यादा बेहतर बताएंगे किस मेडिसिन को कब किस समय दिया जाना चाहिए, लेकिन जो रूट कॉज है वो मेंटल डिस्टरबेंस होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंजाइटी होती है, उससे ही ये चीजें डेवलप होती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छे मेडिसिन हैं जिनसे कि हम इन्हें कवर कर सकते हैं, बहुत जल्दी उनको क्योर कर सकते हैं, उनको बहुत आराम मिल सकता है। Right. Yes, sir. Right. And So I like to add on few conditions, कुछ reasons जिनकी वजह से आपका पेट जो है, जैसे सर ने बोला, stress is a foremost reason for the happening of seizures. Likewise, I like to add few things also कि आप किस किस condition को avoid कर सकते हो ताकि आपका पेट जो है should not suffer from seizures or epilepsy. Like first and foremost is neurological disorder and stress. स्ट्रेस होगा, कंसेक्यूटिव जो है उसको मिलेगा, एक स्ट्रेस मिलेगा या एंशियसनेस मिलेगी, उसमें एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है जिसकी वजह से पेट बिकम्स वेरी वेरी फजी,
उसकी वजह से कंटिन्यूस बार्किंग रहती है एंड मतलब एक हम बोलते हैं ना मेंटल स्टेट उसका चेंज हो रहा है, दैट बिकम्स द बिल्कुल फोरमोस्ट रीजन। बिसाइड्स दैट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप कंट्रोल कर सकते हैं ताकि एपिलेप्सी या ये हमारे पेट को स्ट्रेस ना हो, सीजर्स ना हो। लाइक एक तो आपके पेट को अपने पॉइजन एंड टॉक्सिन से बचाना है। कोई सा भी अगर रैट पॉइजन आप यूज कर रहे हो अपनी यहाँ पे हाउसेस में, यू कीप योर पेट्स अवे फ्रॉम दोज। नेक्स्ट इज आपको पेट को किसी भी टाइप के ये ट्रॉमा से, लाइक फॉल और इंजरी फ्रॉम हायर प्लेस जो डायरेक्ट कंकशन करेगा ब्रेन के साथ, और न्यूरोनल इंजरीज लाइक ब्रेन टू या स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स को करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद कुछ लिवर डिजीजेज रहते हैं जिसमें लिवर इन्वॉल्व रहता है। ऑल्सो इन कन्वेंशनल मेडिसिन जो आप यूज करते हो अगेंस्ट फिट्स, आई लाइक टू ऐड कि उसकी वजह से भी जो है लिवर टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लिवर जो है बहुत ज्यादा लोड हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई पेट पेरेंट्स वांट टू शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मेडिसिन टुवर्ड्स अ हेल्थियर ऑप्शन फॉर द पेट्स इन दिस सिचुएशन। तो लीवर डिजीजेज रहेंगे, किडनी डिजीजेज रहेंगे, बॉडी में जैसे टॉक्सिन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे क्रिएटिनिन वगैरह भी कभी हाई हो जाता है, किडनी फेलियर होता है, कोई सा भी टॉक्सिन व्हेन इट रीचेस टू ब्रेन इट कैन ब्रिंग अ सीजर टू योर पेट। तो आपको इन सब कंडीशंस का कंट्रोल करना है। ऑल्सो आपको सबसे फोरमोस्ट जो स्ट्रेस रहता है विच इज द प्राइमरी कॉज टू डिफरेंट सिचुएशंस, वो कंट्रोल रखना है। डायबिटीज को कंट्रोल रखना है। अनकंट्रोलेबल शुगर लेवल्स जो हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन फैक्टर फॉर इंड्यूसिंग स्ट्रेस एंड सीजर्स टू योर पेट। दीज आर द फ्यू थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अदरवाइज अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो fits and seizures can be controlled very well. Right. So what is the best solution for treating epilepsy and seizures for a homeopathic medicine? So, ma'am, I'll suggest to the pet parents कि just like primarily we talked about stress, the main factor of production of seizures and fits to the pet. उसको कंट्रोल करने के लिए we have this wonderful product जो हर किसी टाइप के स्ट्रेस के ऊपर, इवन एंजाइटी है, इश्यूज एंड सेपरेशन एंजाइटी है, कंटिन्यूस बार्किंग है, फियरफुल कंडीशंस हैं पेट को, उसको कंट्रोल करने के लिए we have this stressor recommended every टाइप पेट पेरेंट जो प्राइमरी कॉज के ऊपर एक जो है चेक रखेगा। लेकिन उस सिचुएशन से हट के अगर किसी और रीजन की वजह से, लाइक इंजरी की वजह से, नर्वस सिस्टम इंजरी, या फिर किसी और रीजन से, जेनेटिक रीजन से, या फिर कैनाइन डिस्टेम्पर की वजह से आपके पेट को अगर है एपिलेप्सिक एपिसोड्स आ रहे हैं, उसको फिट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आई सजेस्ट स्टार्ट यूजिंग न्यूरोमेट 15 ड्रॉप्स 3 times a day। कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए इट्स अ वेरी 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 वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर द पेट पेरेंट्स। इतना इजी हो जाता है पेट को हैंडल करना, और एपिसोड्स एंड फ्रीक्वेंसीज बिकम वेरी वेरी लेस। Yeah, and it's a free of side effect. Best thing is about homeopathy that it's a free of side effect, so no need to worry about it की वो effect। हम कन्वेंशनल मेडिसिन में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ड्रग यूज कर रहे हैं, वेरी कॉमन मेडिसिन विच वी आर यूजिंग इन कन्वेंशनल मेडिसिन, इट इज समवट हिपैटोटॉक्सिक। आपके पेट के लीवर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से पेट की एवरेज लाइफ वैसे ही कम हो सकती है। नॉर्मल लाइफ 12 to 15 years है, बट इट कम्स टू लाइक 7 to 8 to 9 years अगर वैसा कंडीशन रहता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज सेफर ऑप्शंस फॉर योर पेट। Correct. So what causes epilepsy in pets? क्या क्या causes होते हैं epilepsies के? क्या क्या symptoms हो जाते हैं epilepsy के? Can you describe me? Yes. Basically, ma'am. Yes, sir. Okay. Basically, ma'am, canine distemper is the most common problem for the creating seizure disorders or neurological disorders, and it's a 4 type of symptoms are there. Either it breaks on neurological, so उसकी वजह से primarily जो है पेट का जो मूवमेंट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मूवमेंट करने लगता है। समटाइम्स कैनाइन डिस्टेम्पर में एलिमेंट्री कैनाल पे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो या तो वॉमिटिंग्स ज्यादा होने लगेगी, या फिर डायरिया ज्यादा होने लगेगा, या फिर लिवर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एक तरह से लिवर इन्फेक्टिव हो जाएगा तो बॉडी को दिक्कत करेगा। या फिर समटाइम्स मस्कुलर स्प्रेन्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो मसल टाइट हो जाएंगी, मसल जैसा कि मैडम बता रही थी सीजर्स में ऐसा होता है। तो ये 4 तरह की डिस्टेम्पर होती है, और मुझको लगता है कि ये सारी की सारी इनमें जहां तक हम अभी देख पा रहे हैं बहुत अच्छे इफेक्ट्स जो आ रहे हैं वो न्यूरोमेट के आ रहे हैं। न्यूरोमेट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, और स्ट्रेसजा भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। Yes, sir.
यूजुअली सर हम क्या देखते हैं कि पेट पेरेंट्स बताते हैं कि जब उसका पेट को सीजर्स आ रहे हैं तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, इट जी स्टार्ट्स बार्किंग, मतलब एकदम से उसकी बिल्कुल। वोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड व्हेन दे ट्राई टू काम इट डाउन तो वो एकदम नर्वस हो जाता है, पेट जो है वो नर्वस हो जाता है, वो उनको अपने पास नहीं आने देता है, एंड इट स्टार्ट्स बार्किंग एंड अटैकिंग देयर पेट्स, एंड समटाइम्स यू फील कि पेट जब पेट पेरेंट अप्रोच करे टू काम डाउन द पेट तो जो पेट है इट में बाइट द पेट पेरेंट राइट। ऑल्सो। becomes very important to reduce that kind of stress क्योंकि पेट भी डर जाता है what new thing is happening to him, ये जो फिट्स होता एग्जैक्टली। है they bring a lot of discomfort to pet, so it becomes very important कि हम वो वाला जो primary stress है वो reduce करें, that's why I suggest using Stressa and Neuromate to the pet parents in combination। जो ये वाला condition है, जो पेनफुल कंडीशन है पेट के लिए, वो वहां से काम डाउन होगा, जो एपिलेप्टिक एपिसोड्स हैं उसको बार बार फिट्स आ रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, दिन में 5-6 बार एक साथ आ गया, दैट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड विद न्यूरोमेट। फिर उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं कि वंस इन अ मंथ हो जाएगा, फिर 6 मंथ्स में एक बार हो जाएगा, लाइक वाइज उसका कंट्रोल जो है काफी हद तक होता है। बहुत बढ़िया। नाइस, ग्रेट। सो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पेट पेरेंट के, सो मे वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस आल्सो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाय माय इंडी डॉग कीप्स गेटिंग फंगल स्किन इन्फेक्शन। Okay. सो मैम और सर, ये जो है फंगल इन्फेक्शन है या कोई सा भी टाइप का इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम है, इसके लिए आई सजेस्ट यूजिंग मी एंड डर्मिस्यूल 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे, और अगर इट इज फॉलोड बाय अग्रेसिव हेयर फॉल, अगर वहाँ पे पैचेस हैं, एलोपेशिया है, तो यू कैन ऑल्सो यूज मी एंड माई स्किन एंड कोड ग्रैन्यूल्स अलॉन्ग विद दैट, बोथ इन कॉम्बिनेशन डर्मिस्यूल एंड मी एंड माई स्किन एंड कोड ग्रैन्यूल्स। Great. Okay, so next question, which is asked by a Shubham, that what can I give my dog during car journey? कार जर्नीज, ऑल Yeah, राइट, एज आई टोल्ड अर्लियर कि जब कार जर्नीज में पेट्स बिकम वेरी एक्साइटेड और पेट्स बिकम एकदम से स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब ट्रिप्स के ऊपर दे डोंट फील वेरी कंफर्टेबल, तो अगेन इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू द पेट। अगर car journey, long trips, stress, 15 drops 3 times a day, it brings a lot of calm to your pet. great answer. Okay, so next question is, can I give Neuromate along with the other medicine which is currently on, and how? Yes, yes. All right. So I'll suggest कि आप जो भी हमारा homeopathic product है, it doesn't bring any kind of contradiction with other kind of medicine. So you can directly use this product with other medications with no Yeah, side effects. कुछ भी issue नहीं होगा. It's a kind of supplementation. तो कोई भी वैसा issue नहीं. You could use that. okay, great. Next question, which is asked by the Oscar the little pup, that spinal injury के बाद he is not able to walk properly. It's affect his leg. He is crawling. What to do? All right. स्पाइनल इंजरी रही है पेट को, उसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रॉमा टू द पेट, तो इसके लिए हमारे लिए एक्सक्लूसिव एक प्रोडक्ट है, दैट इज ट्रोमेट। आपको अपने पेट को ट्रोमेट देना है 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। उसके साथ अगर उसको कोई भी नर्वस सिस्टम का कुछ और दिक्कत आ रही है, कोई और इश्यू आ रहा है उसके साथ, लाइक बियॉन्ड दिस वीकनिंग एंड पैरालिटिक फॉर्म जो है, वो वॉक नहीं कर पा रहा है, उसके बियॉन्ड कुछ आ रहा है, then you could use a Neuromate along with it. Otherwise, only TrueMate can alone help. उसके साथ आप उसकी मोबिलिटी इश्यूज को, अगर मोबिलिटी इश्यूज हैं वो इम्प्रूव करने के लिए मी एंड माई मोबिलिटी ग्रैन्यूल्स यू कैन सप्लीमेंट विद दोज दैट हेल्प इन Correct, इम्प्रूविंग द skeletal system. correct, correct. So there is a Niku Husky. You said thank you for the information. Very helpful. So thanks to you, Sakshi ma'am. You are really helping our pet parents. Absolutely. I want to thank you to because you always bring me the opportunity to interact with pet parents and help them directly. So it brings a lot of comfort to me also. Thank you. Thank you. So there is one more question, which is very common question, that what are the doses of Neuromate drops? Yes sir. Yes ma'am, कोई सा भी प्रॉब्लम रहता है, if there is मतलब not very acute condition, then you can give 15 drops 3 times a day, 15 in the morning, 15 afternoon, 15 in the night for at least 30 days, अगर आपको पेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर कम है then 15 drops for 3 times a day for 15 days is enough. Okay, same question related to the this, that how to give Steza and Neuromate in combination. All right.
सो इट्स वेरी इजी टू एडमिनिस्टर बोथ द ड्रग्स। दोनों हमारी जो मेडिसिन हैं ड्रॉप फॉर्म्स में रहती हैं, तो डायरेक्टली जो है वो ड्रॉपर के साथ आती हैं, उसके ऊपर ड्रॉपर अटैच होते हैं, तो डायरेक्टली आप जो 15 ड्रॉप्स हैं ईच डोज के डायरेक्टली टंग के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। अगर वैसे नहीं लेते तो नॉस्ट्रल्स के अराउंड पेट के स्प्रिंकल कर दें। वैसे भी नहीं लेते तो आप ड्रिंकिंग वाटर में एटलीस्ट 15-20 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल के ईच टाइम वो आप पेट को दे सकते हैं पीने को। दीज आर द फ्यू। एक चीज के लिए साक्षी, मैं एक चीज बड़ा ध्यान से कहूंगा कि डॉक्टर साक्षी भी इस बात के लिए कह रही थी कि एट द टाइम ऑफ एपिलेप्सी, एट द टाइम ऑफ फिट्स जब पड़ रहे तब उस समय किसी तरह की कोई मेडिकेशन उस पर डालने की कोशिश ना करें। इस समय उसको बिल्कुल काम होने दीजिए, उसे उसका पूरा पीरियड निपटने खत्म देना दीजिए, उसके बाद उसको मेडिकेशन कीजिए। समटाइम्स ना लोग बहुत ज्यादा एगरनेस दिखाते हैं, उनको लगता है कि यार ये मेडिसिन फटाफट दे दो, या नॉस्ट्रल्स पे तो देनी है या टंग पे तो देनी है, तो वो उस टाइम पे ना दे, वरना उससे कुछ नुकसान हो सकता है। आप उसको बाद में दीजिए मेडिसिन, और बड़े तरीके से दीजिए। Yes, sir, because great point sir on this कि काफी प्रॉब्लम होती हैं पेट्स को इस चीज से रिलेटेड। What happens is जब आपका पेट जो है फिट से गुजर रहा है, when it is in between the fit condition, तो क्या होता है उसके सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं they stop immediately। ठीक है, ब्रेन के ऊपर एकदम से ऐसे कंट्रोल आएगा कि उसका swallowing रिफ्लेक्स जो है वो स्टॉप हो जाता है। आप टंग के ऊपर कोई सा भी मेडिसिन डालेंगे, इवन इफ यू पुट वाटर टू काम हिम डाउन, वो कभी स्वॉलो नहीं होगा और वो सीधे सीधे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकते हैं, जिस अदर कंडीशंस लाइक निमोनिया आल्सो हैपन। So pet इतना irritated होता है उस टाइम पे, if you approach him he can directly bite you। कभी bite नहीं किया, but during fit he can bite you, so don't even disturb। There is a one review which is from the Explore Indie with Daisy that Inflasul is helping me a lot when it comes for a little camps, also having Inflasul almost 4 packs for our trip to be convenient. So that's a nice thing. And one more compliment which is from the Nicosti, which is it's a homeopathic medicine. It's a free of side effect and very relief medicine. Yes, काफी यही रिव्यू रहता है। They are totally safe to be given in every condition। किसी भी फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ पेट में है, अगर वो छोटा बच्चा है, पपी है, ग्रोइंग एज में है, कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज है, या फिर फिजियोलॉजिकल स्टेज है कि वो प्रेग्नेंट है आपका पेट, जेरियाट्रिक पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, उसको कोई क्रॉनिक कंडीशंस है, कोई टॉक्सिसिटी से रह रहा है, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कुड use homeopathy without a second thought because it is totally safe to be given, no side effects, no contraindications, and very smooth जो उसका result and recovery होता है वो very smooth रहता है, and you'll definitely see good results। Correct. Absolutely. Correct. So one more question, that Neuromatin Steza is safe for to use in a pregnancy pet? Yes, I already told कि जो भी हमारा होम्योपैथी का प्रोडक्ट रहता है, right, safe to be used during pregnancy also। लिटर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई स्टिल बर्स्ट नहीं होंगे, it is totally safe to be used। Okay, so what is the duration between a Steza and Neuromet to administrate? Like कितना गैप होना चाहिए उसमें Steza देने के लिए, या एक साथ दे सकते हैं? काफी प्रॉब्लम होती है इसमें पेट को कि कैसे हम दें Neuromet Steza साथ दे दें या गैप रखें। So what do you think about? Yes, so generally I suggest कि 5 to 10 minutes का gap, अगर if possible you could use that gap in administration। अगर patient आपका बहुत ज़्यादा cooperative है, you could use that gap, मतलब 10 to 15 minutes का उसके बाद देंगे। अगर नहीं possible है, बहुत aggressive patient है, तो all together भी दे दें, नहीं possible है तो आप water में दोनों को mix करके एक ही बार dose बना के देते हैं, कोई cross reaction वैसा बात नहीं होती है, but it is always better because bioavailability increase रहती है अगर individual doses में। Okay, so same question led to this also, that कि न्यूरोमेट है जो उसको हमें बिफोर मील देना है, आफ्टर मील देना है, या कितना गैप रखना है? तो सर ने भी ये काफी बार पहले भी सेशंस में डिस्कस किया और अभी फिर से बता, कुछ भी ऐसा कोई वो क्रॉस रिएक्शन नहीं रहता है। इट इज वेरी सेफ टू बी गिवन एम्प्टी स्टमक आल्सो, बट यूजुअली फीड के बाद अगर है तो वैसे बेटर ही रहता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो वैसे भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है वैसा। Okay, so Oscar the little pup is asking, can you suggest me, repeat me a medicine which you suggest for the crawling after 2 months after spinal injury?
ओके, सो मैंने आपको सजेस्ट किया था आप ट्रूमेट यूज करेंगे 15 drops 3 times a day regularly for at least 1 month. TrueMate along with me and my mobility granules. Great. Lastly, actually, I want to tell all the pet parent that they ask me कि कहाँ से परचेज करें, कैसे परचेज करनी है. तो आप सबको एक आप वेबसाइट है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज www.goilvetpharma.com. आप वहां पे जाइए, आपको जो भी मेडिसिन परचेज करनी है, जो भी डॉक्टर साक्षी मैम आपको सजेस्ट करती हैं, जो भी डिसीज आपके पेट को है उससे रिलेटेड के आप मेडिसिन वहां से ले सकते हैं. इन केस आपको कोई ऑनलाइन अमेजोन से बाय करनी है, आप अमेजोन से भी ले सकते हैं. सारे हमारे अमेजोन से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं. एंड आपको कुछ बात करनी है कि कैसे देना है या डॉक्टर साक्षी मैम के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, हमारी वेबसाइट पे आप जाकर आप डॉक्टर साक्षी मैम से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं. एंड देयर इज अ वन कॉन्टेक्ट नंबर which is 8191006007. You can call to this number and we are the team which help you every time, anytime you need it, we help you. Absolutely, we are. Yeah. तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेरी आ रही है आई महिमा की. तो शी इज आस्किंग आई हैव ऑर्डर्ड मोबिलिटी फ्रॉम योर वेबसाइट फॉर माय लैब्राडोर as she limps a little bit, how many times do I need to give her? All right, ma'am. Limping जो है Labrador is a heavy breed, medium to heavy breed. Limping रहता है problem अगर उसके बीच में, that could be because of hip dysplasia also. Please get it diagnosed. So I'll be suggesting you to use mobility along with Inflasul because limping is a common feature of hip dysplasia. तो आप इन्फ्लास्यूल जो है 15 drops 3 times a day अपने पेट को देंगे एंड along with that me and my mobility granules 1 teaspoon a day आप उसके कर्ड में या फिर बटर मिल्क में मिक्स करके वो ग्रैन्यूल उसको टू हैव इट, just offer her to have it, and along with that please use Inflasul for limping issues. And another question, what medication to give to my pet when going on snowy area or high altitude zones? So please use Stressa if your pet is very much anxious while traveling. Please use Stressa. होप सब पेरेंट्स के सारी क्वेरीज सोल्व हो गई होंगी और जो भी लेफ्ट है प्लीज डीएम एंड डेफिनेटली डॉक्टर साक्षी मैम आपको रिप्लाई देंगे एंड विल रिप्लाई यू ऑन अ डीएम एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम डॉक्टर साक्षी एंड मृदुल सर. So thank you both of you. Thank you very much. Thanks to Dr. Sakshi a lot. Thank you sir for having me. Thank you.